ओके, सो लेट अस बिगिन विथ सर्कल्स. सर्कल्स का बेसिक पहले डिस्कस करेंगे. व्हाट ऑल थिंग्स, व्हाट इज एन आर्क, व्हाट इज सेंटर, व्हाट इज रेडियस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्ड, है ना. डायमीटर, ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस करेंगे. व्हाट इज सेक्टर, व्हाट इज सेगमेंट. मेक श्योर योर बेसिक्स आर क्लियर. अगर बेसिक्स क्लियर है तो ऑब्वियसली आगे थ्योरम समझ आएंगे. फाइन. सर्कल में बहुत सारे थ्योरम्स है, यू नो दैट. फाइन. सो फॉर दैट योर बेसिक्स शुड बी क्लियर. First and foremost thing, what is a circle? A circle is a collection of all points in a plane. You are not supposed to, cram this thing. यहाँ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. Circle basically collection of all points in a plane which are at the same distance from a fixed point. What is this fixed point? Center. Center, exactly. तो circle क्या होता है? यहाँ पे what are they trying to say here is, circle is the collection of all points in a plane which are at the same distance from a fixed point. So you know when you draw a circle, क्या use करते हो circle draw करने के लिए? Compass. Compass use करते हो, right? क्या बोल रहे हो आप उसको? Rounder बोलो, compass बोलो, है ना. So when you use a compass or a rounder, you know that there is a fixed point that is the center of circle, जहाँ पे वो टिप लगता है. Yes or no? Fine. The fixed point is called the center and ये फिक्स पॉइंट से सर्कल के किसी भी एंड का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस. इज दैट क्लियर? बहुत रेडियस कहीं से भी आप, लेकिन सेंटर से बस एज तक. नाउ सेंटर एक फिक्स होता है, एक से ज्यादा सेंटर होते हैं क्या? नो, देयर इज ओनली वन सेंटर, राइट. रेडियस जॉइंस द सेंटर टू द सर्कल, जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया है. एंड डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस. सो रेडियस जॉइंस द सेंटर टू द सर्कल, है ना. ये सर्कल है और सेंटर से लेके सर्कल तक का, सपोज O इज द सेंटर एंड A is the point, so OA is the radius. A is the point on the circle, so OA becomes the radius. Yes or no? Yes or no? Yes. Now what is diameter? Diameter is the longest chord, very good. And diameter is double of radius, twice of radius. So if radius is 5 centimeter, diameter has to be 10, right? Next, diameter is twice the radius. Chord joins two points on the circle. Now chord क्या होती है? कोई भी दो points को circle पे join करती है. Center से भी कर सकती है. Diameter is also the chord. Diameter is the longest chord as we mentioned now, right? For example, AB, let me explain. For example, if you take any point P on the circle और कोई भी point Q ले लो, right? So if you join PQ, then PQ is chord of the circle, yes or no? AB is also the chord. It's just that AB is the longest chord because it is the diameter. Yes or no? So chord कोई भी हो सकती है. Chord is basically something, a line which joins two points on the circle. Yes or no? It can pass through center also. Is that clear? Fine. Next. What do you mean by collinear points? What do you mean by collinear points? कोलिनियर का मतलब क्या होता है? यस बोलो. नो नीड टू हेजिटेट. गलत भी हुआ आंसर तो कोई आपको स्कोल्ड नहीं करने वाला है. एंड नोबडी इज गोइंग टू जज यू. प्लीज मेक श्योर दैट यू आंसर. इंटरैक्शन होना चाहिए, मैंने पहले भी बोला है. डोंट वरी, डोंट हेजिटेट, इट्स ओके. आंसर रॉन्ग भी है ना, चलेगा. मुझे आपने आंसर दिया, यही बहुत है. जो एक लाइन में नहीं आते उससे हम सर्कल बना सकते हैं. मैंने आपसे कोलिनियर का मीनिंग पूछा, not the meaning of this statement. Collinear points means, अरे आता है आपको, आता है, नहीं आता है? Collinear points are the points which lie on same line.
So if these are points A, B, C, so A, B, C are collinear points. So non collinear points obviously कैसे points हो गए, जो same line में नहीं है. So only one circle can be drawn through 3 non collinear points. That means if you take 3 points randomly but they shouldn't be in the same line, आप सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. ये सॉरी थोड़ा, you can draw one and only one circle out of 3 non-collinear points. I hope the meaning of collinear and non-collinear is clear to you. Yes? Now, chord and angle. What do you mean by, I hope chord तो समझ आया है, right? Equal chord subtend equal angle at the center of the circle. इसका proof भी देखेंगे हम, ठीक है? We'll prove it. कैसे? So, what are they trying to say here is, मैंने डायग्राम इसलिए ही नहीं बनाया ताकि आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको इजीली समझेगा कि मैं कौन से एंगल, कौन से सर्कल, कौन से सेंटर की बात कर रही हूँ. सो इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट अस टेक 2 chords, से chord AB and chord PQ. Now equal chords means दोनों की लेंथ सेम होगी. सो chord AB एंड chord PQ, अगर ये दोनों chords इक्वल हैं तो दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. सबटेंड मीन्स chord को आप बेस लेके यहाँ पे chord AB कौन सा एंगल बना रहा है सेंटर पे, AOB, एंड chord PQ कौन सा एंगल बनाएगा, POQ. What are they trying to say here is, if chords are equal, then angle subtended by chords at the center is also equal. That means if AB is equal to PQ, if AB is equal to PQ, that means if chords are equal, then the angle formed by chords at the center, that is angle AOB, will be equal to angle POQ. Yes or no? समझ में आया? Okay. Next. Perpendicular from center to the chord. Perpendicular means कितने का एंगल बनाएगा? 90 degree, right? So if this is your circle, this is the center. The perpendicular from center to a chord, chord के सेंटर से अगर सर्कल सेंटर तक लेके जाए लाइन तो 90 डिग्री bisects the chord. Perpendicular from center to the chord. If say center क्या है? O. Point O is the center and AB is the chord. So perpendicular from center to the chord. If say OP is perpendicular to AB, so perpendicular from center to the chord bisects the chord. That means AP will be equal to PB. AP will be equal to PB. यानी अगर आपने सेंटर से chord पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ की chord पे, if chord is the base, तो वो जो लाइन है, वो जो लाइन सेगमेंट है, वो उस chord को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. इज दैट क्लियर? कैन आई से P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB? यस, फाइन. नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ chords फ्रॉम द सेंटर. इक्वल chords आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. अगेन इसके पहले देखा था हमने, इफ chords आर इक्वल देन एंगल सबटेंडेड आर ऑल्सो इक्वल. यहाँ पे बोल रहे हैं इफ chords आर इक्वल, व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? chords इक्वल होंगे तो एंगल तो इक्वल सबटेंड करेगा ही सेंटर पे, लेकिन अगर chords इक्वल होंगे तो और एक चीज होती है. इफ chord AB इज इक्वल टू chord PQ, अगर AB और PQ ये दोनों chords इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों chords का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी इक्वल होगा. OM and ON. That means if chord AB is equal to chord PQ, then if chord AB is equal to chord PQ, then yes, then
OP इज इक्वल टू OM, OP नहीं OM, मैंने ओवर राइट किया, इट्स OM. P ऑलरेडी नाम दे दिया था ना, राइट? सॉरी फॉर दिस इज एनीवे, ठीक है, दिस इज OM. सो दो कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो उन दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा. अच्छा, एनी डाउट सो फार? श्योर. नेक्स्ट, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, व्हाट इज एन आर्क? सर्कल की बाउंड्री, हाँ, सर्कल की बाउंड्री के वहाँ पे arc is a part of सर्कल. सर्कल की जो बाउंड्री है, यस यू कैन से, उसका पार्ट होता है, राइट? इफ O इज द सेंटर, ये जो मैं ब्लू में मार्क कर रही हूँ, ये क्या हो गया? आर्क. ओनली दिस पार्ट इज द आर्क. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी जो सर्कमफरेंस है, सर्कमफरेंस पता है ना, जो बाहर का एरिया है, जो एरिया नहीं, बाहर का जो लेंथ है, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. ये बाहर की बाउंड्री का कोई भी पार्ट अगर आपने उठा लिया, दैट इज आर्क ऑफ द सर्कल. ठीक है? बैंगल होती है ना, बैंगल कैसे टूटती है, तो वो टूटा हुआ जो होता है वो ऐसे समझो वो आर्क है सर्कल का. इज दैट क्लियर? देखा तो होगा ही आपने. तो आई एम गिविंग यू फेमिलियर एग्जाम्पल. सो इफ ये आपने तोड़ दिया तो ये बैंगल का अगर टूटा हुआ हिस्सा, ये आपका बैंगल का आर्क हो गया. इज दैट क्लियर? ओके. क्या बोल रहे हैं ये? एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द पॉइंट ऑन द सर्कल. व्हाट आर दे ट्राइंग टू से हियर? एंगल एट द सेंटर, if the center of circle is say O, हमेशा O ही लेते हैं, mostly O, right? So if the center is O, angle at the center is twice the angle at the point of the circle. Suppose ये एक एंगल है, सेंटर पे एंगल बना है, एंगल का वर्टेक्स कौन है? O. You can come here. वहाँ से नहीं दिखेगा आप दोनों को. सेंटर क्या है? वर्टेक्स है एंगल का. एंगल के ये OA एंड OB आर द आर्म्स ऑफ एंगल. यस और नो? एंगल AOB के आर्म्स क्या है? OA एंड OB. तो एंगल का मेन पॉइंट कौन सा है? O, राइट? सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू मेंशन हियर? A और B को लेके अगर O से एंगल बना रहे हो, और A और B को लेके अगर आप सर्कल के किसी भी इस पे एंगल बना रहे हो, वेट, what are they trying to mention here is, अगर आप सेंटर पे एक एंगल बनाते हो A एंड B पॉइंट लेके, एंड A एंड B पॉइंट लेके ही आप सर्कल के किसी भी एक पार्ट पे भी अगर एंगल बनाते हो, से दिस इज P. ठीक है? सो बट आर्म्स A और B ये दोनों सेम पॉइंट होने चाहिए. सो ये दोनों सेम पॉइंट्स लेके सेंटर वाला जो एंगल होगा वो किसी भी पॉइंट के एंगल का डबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ एंगल APB इज x, अगर एंगल APB x है तो एंगल AOB क्या होगा? 2x. यानी ये इसका डबल होगा. इज दैट क्लियर? ये इसका डबल होगा या ये इसका हाफ होगा, एक ही बात है. APB AOB का हाफ है या AOB APB का डबल है. ये याद रखना. ये बहुत सारे ऐड होगा, मतलब डबल होगा. अगर ये एंगल दिया हुआ है तो ये फाइंड करने के लिए उसका डबल करना, और अगर ये दिया है ये फाइंड करने के लिए उसका हाफ करना. व्हाट आर वी ट्राइंग टू मेंशन हियर इज, ये वाला दिमाग में ये रखो. ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. फाइंड एंगल दिस, फाइंड एंगल दैट, तो ये बहुत हेल्प करता है. फाइन. एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज double of the angle subtended by the same points at any point of the circle. Am I clear? Yes or no? Yes. Do you want me to repeat it? Pakka? Angle in the same segment. Segment क्या होता है?
कॉर्ड बनाओ. ओके. So the part below the chord is central. It is the minor segment and major. Good. So segment is basically chord and सर्कल के बीच का एरिया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स लाइक सर्कल को आपने बीच से कट कर दिया और जो साइड सर्कल का सेंटर होगा वो मेजर सेगमेंट होता है और इफ आई से लाइक दिस मेजर आर्क होता है. ये ब्लू में क्या है? आर्क. ब्लैक लाइंस में क्या है? सेगमेंट. सेगमेंट यानी पूरी एरिया कवर करता है और आर्क सिर्फ बाउंड्री कवर करता है. यस, सरकमफेरेंस बोलते हैं दूसरे फिगर्स के लिए पेरीमीटर. फाइन. सो बेसिकली व्हाट आर वी ट्राइंग टू मेंशन हियर इज जिसके साइड सर्कल का सेंटर आएगा वो मेजर सेगमेंट और मेजर आर्क होगा. जिसके साइड सर्कल का सेंटर नहीं आएगा वो माइनर. सो वी हैव टू थिंग्स दैट इज मेजर आर्क and minor arc. Just like that we have major segment and minor segment. Any doubt so far? Sure? समझ में आया? Concyclic points. What do you mean by this? लिखा ही है एकदम इजी लैंग्वेज में. पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम सर्कल आर कॉल्ड एज कॉन्साइक्लिक. जैसे कोलिनियर क्या होता है? सेम लाइन. सेम लाइन पे पॉइंट्स है तो कोलिनियर, सेम सर्कल पे पॉइंट्स है तो कॉन्साइक्लिक. इज दैट क्लियर? अच्छा, ये मिस हो गया है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट बताना रह गई है, समझाती हूँ. पहले कॉन्साइक्लिक देख लेते हैं, अभी आगे चले गए तो आपको नहीं है. ये भी सिर्फ प्रॉपर्टी है, ऐसे कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है. जस्ट अंडरस्टैंड कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स मीन्स अगर सारे पॉइंट्स उसी सर्कल पे लाई करते हैं तो वो सारे पॉइंट्स हो जाएंगे कॉन्साइक्लिक. एंगल इन द सेम सेगमेंट. अगेन हमने सिर्फ सेगमेंट डिस्कस किया बट ये प्रॉपर्टी क्या है? सेगमेंट समझ आया? नाउ अगर ये एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, अगर ये एक सर्कल है और मैंने सेगमेंट का नाम क्या दिया था? ए बी. ठीक है, मेजर सेगमेंट के साइड एंगल बनाए, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एंगल बनाती हूँ से एक एंगल ए पी बी और दूसरा एंगल बनाती हूँ एंगल ए क्यू बी. Yes, the statement says angles in the same segment of a circle are equal. ये सेम सेगमेंट में ही आ रहे हैं दोनों एंगल्स, है ना? सेम सेगमेंट में दो एंगल्स आ रहे हैं. दैट मीन्स अगर एंगल ए पी बी एक्स हुआ तो एंगल ए क्यू बी भी एक्स होगा. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर योर क्वेश्चंस. एक वो इम्पॉर्टेंट था डबल वाला, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट. अगर सेम साइड पे रहा तो समझ में आ रहा है. एंड एक दूसरी प्रॉपर्टी ये इम्पॉर्टेंट है दैट योर सेम सेगमेंट में जो अगर दो एंगल्स होते हैं दोनों इक्वल होते हैं. आर्क इक्वल तब होगा जब आप डायमीटर बनाते हो. हाँ तो भी हाँ, डायमीटर तो डायरेक्ट सेमी सर्कल ही कर देगा उसको, है ना? इफ यू ड्रॉ द डायमीटर दैट मीन्स आपने सर्कल को सेमी सर्कल में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इज दैट क्लियर? दो आर्क मतलब दो कॉर्ड बनाए जो सेम साइज के हो और उसमें जो आर्क होगा वो भी सेम होगा और उसके जो एंगल. हाँ, इफ कॉर्ड इज ऑफ सेम साइज, यस डेफिनेटली. इज दैट क्लियर? सेगमेंट वाला समझा? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. सेम सेगमेंट में होंगे तो इक्वल. हाँ, सॉरी, डू यू वांट मी टू ड्रॉ इट अगेन?
इक्वल सेगमेंट्स वाला. अच्छा, जो ये जो वरुण पूछ रहा था. ओके, इफ दिस इज द सेंटर, दिस इज द डायमीटर. ओके, सो मतलब दोनों सेगमेंट्स विल बी इक्वल ना. सो अगर एक एंगल ऊपर है, ऊपर वाले सेगमेंट में, और एक एंगल नीचे है, तो दोनों की एंगल 90 डिग्री होती है. वो एक प्रॉपर्टी है कि अगर अब ये इसका एंगल कितने का, वो पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360. सेमी सर्कल कितने डिग्री का होता है? 180. तो कभी भी ये जो एंगल होता है ना, ये सेमी सर्कल का हाफ होगा. और यहाँ पे भी अगर आप ड्रॉ करोगे तो इज दैट क्लियर? चले आगे. हाँ या ना? कौन साइक्लिक पॉइंट्स हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. हाँ हाँ बताओ. अंदर वाला क्वाड्रिलैटरल वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. यस. उसके अपोजिट एंगल विल बी इक्वल. नो, नॉट इक्वल, सप्लीमेंट्री. 180. यस. वर्टाइसेस लाई ऑन द सेम सर्कल. दैट मीन्स पॉइंट्स कैसे हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के वर्टाइसेस सारे सेम सर्कल पे ही रहते हैं. दैट मीन्स पॉइंट्स कैसे हैं? क्या बोलेंगे हम? ए बी सी डी. सीक्वेंस सही से लिखो, ऐसे नहीं चलता है ए बी सी डी. इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नाम दो. ठीक है. सो इफ दिस इज क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, ये सारे पॉइंट्स कौन साइक्लिक है या नहीं? Why? They are lying on the same circle. Exactly. So cyclic quadrilateral इसको बोलते हैं. जो quadrilateral के vertices कितने होते हैं? 4, right? So if all the 4 vertices of a quadrilateral are lying on the same circle, then it is called as cyclic quadrilateral. Points are concyclic, but quadrilateral is cyclic. Is that clear? It's okay. सही है. होता है. पॉइंट्स कौन साइक्लिक है तो क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक होगा. ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सो इफ एंगल ए इज x, देन c विल बी 180 माइनस x. यस और नो? दैट मीन्स एंगल a प्लस एंगल c विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. एंड लाइकवाइज एंगल b प्लस एंगल d विल बी इक्वल टू. इज दैट क्लियर? किसी भी क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है. ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. ओके, एनी डाउट्स सो फार इन ऑल द कॉन्सेप्ट्स और एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स वी हैव कवर्ड? कोई डाउट है? सब कुछ समझ आया? सारे थ्योरम्स, कॉर्ड्स प्रैक्टिस करें. आर्क, सेगमेंट, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स. हाँ, सेगमेंट हो गया. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. फाइन. प्रैक्टिस करते हैं. अरे हाँ, सेक्टर इज वन मोर थिंग. यहाँ और एक चीज़ है. व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टर? यू टेल मी. आप लोग बताओ. पिज़्ज़ा पसंद है? बहुत. वही तो पसंद है, घर का खाना नहीं अच्छा. हाँ, पिज़्ज़ा का स्लाइस इज योर सेक्टर. इक्वल पीस करते ना, वो इक्वल पीस करते हैं. इक्वल करो, छोटा मोटा थोड़ा होता ही है कट करने में, राइट? सो वॉट एवर योर पीस इज, दैट इज योर सेक्टर. So if this is the center O, this is A and B, this AOB ये जो है ये सेक्टर है. यानी आप ऐसे समझो, इसमें भी मेजर और माइनर होता है.
ये 10th स्टैंडर्ड में CBSE 10th स्टैंडर्ड में ये आएगा आपको कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। आपको अभी भी ICSE को हो सकता है अभी हो, स्टेट बोर्ड को भी 10th में है। एनीवे बट सेक्टर समझ में आ रहा है। इट्स लाइक योर पिज़्ज़ा का स्लाइस, पिज़्ज़ा राउंड होता है एंड आप जो स्लाइस कट करते हो ना, दैट इज़ योर सेक्टर। इज दैट क्लियर? सेक्टर इज बेसिकली सेंटर, और ये जो सर्कल का बाहर का लेंथ है दैट मीन सर्कमफेरेंस है, एक टुकड़ा ही आपने पूरा हटा दिया, दैट इज योर सेक्टर। माइनर सेक्टर एंड मेजर, ठीक है, बट बेसिकली ये ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल यू टेल मी इफ पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 का। एनीवे अभी के लिए आप सिर्फ सेक्टर का मीनिंग याद रखो, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर और ये सब में फिलहाल हम नहीं डिस्कस करेंगे। फाइन, एनी डाउट्स?